بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نظم ہے مناظر سحر اور اس کے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی۔ سیکنڈ ایئر کی یہ بک ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی۔ کیا روح فضا جلوہ ہے، رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ جوش کی زبان کلاسیکی اردو شاعری کی بہترین مثال ہے۔ ان کے الفاظ بلند، شاعرانہ اور جاندار ہیں جو پڑھنے والے کی دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو جوش ملیح آبادی کا جو انداز ہے لکھنے کا وہ پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے۔ ان کی زبان اس قدر وسعت کے ساتھ ہے، اس قدر گہرائی کے ساتھ ہے۔ نظم مناظر سحر صرف ظاہری حسن کی تصویر نہیں بلکہ اس میں انسان کی روحانی تجربات اور قلبی سکون کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ یعنی قدرت کا حسن کس طرح سے ہماری روح کو متاثر کرتا ہے، ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے، دل پر اچھا اثر ڈالتا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو اس نظم میں ملے گا۔ جوش نے اپنے منفرد انداز اور الفاظ کے چناؤ سے وادی کشمیر کے مناظر کی ایسی زندہ تصویر کشی کی ہے جو کہ قابل ذکر ہے۔ صبح کا وقت قدرت کی بہترین اور بڑی عطا ہے جو زندگی کی تازگی اور سکون کا ذریعہ بھی ہے، یعنی جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ انسان کو بہت خوبصورت اچھے اثرات اس پر مرتب کرتا ہے۔ فطرت کی یہ خوبصورتی ہمیں زندگی کے صحیح معنی سکھاتی ہے اور اسی فطرت کو انہوں نے اپنے الفاظ میں اپنی نظم میں استعمال کیا ہے، بیان کیا ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملے۔ یہ نظم ہمیں سکون کے حقیقی سرچشمے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی صبح کے چہرے سے پردہ اٹھ گیا، کیا روح فضا جلوہ ہے، رخسار سحر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ آسان الفاظ میں شاعر کا کہنا ہے کہ صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی صبح کے چہرے سے پردہ اٹھ گیا اور تمام مناظر عالم اطراف منور ہو گئے، جس سے لوگوں کی روحیں تک تر و تازہ اور شاداب ہو گئیں۔ صبح کے وقت کشمیر کا ہر منظر جنت کی تصویر پیش کرنے لگا۔ آگے ہم نے جنت کا ذکر دیکھا نا، تو اس کو ہم کہیں گے صبح کے وقت کشمیر کا ہر منظر جنت کی تصویر پیش کرنے لگا، جیسے جنت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ پھولوں پر شبنم کے قطروں نے ان کے حسن کو مزید بڑھا دیا۔ یعنی کیا منظر شاعر دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ پھولوں پر شبنم کے قطروں نے ان کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ ہر منظر کا اصل حسن نمایاں ہو گیا کہ ہر صبح کا وقت ایسا تھا کہ منظر خوبصورت تو تھے لیکن ان کا حسن نمایاں ہو گیا تھا، اس وقت میں، اس لمحوں میں نکھر کر سامنے آ گیا تھا۔ ہر منظر دل کو متاثر کر رہا تھا، جس طرف نظر اٹھائیں، جس سمت بھی دیکھیں، ہر سمت جنت کی حور کی طرح حسین دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی جنت کی حور ہو۔ ہر منظر، ہر سمت ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور خاک کا ایک معمولی ذرہ بھی طور کے پہاڑ کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ بقول شاعر، گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی است او ہمی است او ہمی است۔ کچھ یہی خیال، کچھ یہی منظر جوش ملیح آبادی کے ان اشعار میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔ نظم کے اگلے اشعار ہیں: لرزش وہ ستاروں کی، وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سفیدی وہ سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو و نسیم سحری کے، شانوں پر پریشاں ہے یا بال پری کے۔ اب ان
अशार में जोश मलिहाबादी किन मनाजिर की बात कर रहे हैं उसे हम देखेंगे। शायर का कहना है कि सुबह की हल्की सफेदी फैली तो सितारे ऐसे टिमटिमाने लगे जैसे कांप रहे हों, यानी जैसे ही सुबह का आगाज हुआ और हल्की सी सफेदी फैली तो जो सितारे थे वो टिमटिमाने लगे, ऐसे लगता था देखने पर जैसे वो कांप रहे हो। रेत के जर्रे ऐसे चमके जैसे मुस्कुरा रहे हो, जब भी धूप रेत पर पड़ती है तो वो चमकते हैं। उस मंजर को आप क्या बयान कर रहे हैं, किस अंदाज में बयान कर रहे हैं कि रेत के जर्रे ऐसे चमके जैसे मुस्कुरा रहे हो। ये मंजर जन्नत की एक ख्याली तस्वीर पेश करते हैं। शायर जोश मलिहाबादी की जुबान जो है बहुत सादा और लेकिन बहुत गहरी है। यही वजह है कि जब वो अपनी किसी चीज की तस्वीर कशी पेश करते हैं, मंजर कशी बयान करते हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज होता है। और उन्होंने अपनी इस नज्म में जिस तरह से वादी कश्मीर को बयान किया, ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत की एक ख्याली तस्वीर पेश की जा रही हो, जहां हर शय पर जादू का रंग छाया हुआ है, हर शय पर इसरार है। चश्मों का पानी जो नदी नालों से गिर रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई नगमा गुनगुना रहा हो। शायर का कहना है कि चश्मों का पानी जो नदी नालों से गिर रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई नगमा गुनगुना रहा हो। पानी जब भी गिरता है तो उसकी एक आवाज आती है, उस ख्याल को आप इस अंदाज में बयान कर रहे हैं। और इनके इस बयान से ऐसे जैसे मंजर सामने मौजूद हो, ऐसे आप तस्वीर कशी पेश कर रहे हैं। ये आपके कलाम की खासियत है और आपके जो अंदाज है उसकी बड़ी खूबी है। जो चारों अतराफ साथ सा बज रहा है, यानी जो चारों अतराफ साथ सा बज रहा है वो पानी के गिरने की वजह से है और जिसे आप नगमे से तशबीह दे रहे हैं। आसमान पर अगरचा अभी तक कुछ हल्का सा अंधेरा है, हल्की तारीकी अभी बाकी है, लेकिन मशरिक की सिमत सफेदी नुमाया हो गई है। शायर का कहना है कि अभी सुबह के वक्त जो है आसमान कुछ ऐसा है कि अभी हल्का सा अंधेरा बाकी है, लेकिन एक सिमत से सफेदी नमूदार हो गई है। जोश ने मंजर निगारी के लिए इंतहाई मुअस्सर और तस्वीरी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जैसे सितारों की लर्जिश, तरन्नुम, तलातुम। चश्मों का बहना इन अल्फाज के जरिए पढ़ने वाला खुद को इन मनाजिर के दरमियान महसूस करता है। आपके इस अंदाज से क्या हुआ कि पढ़ने वाला अपने आप को इन मनाजिर के दरमियान महसूस करता है, वो भी कुदरत के नज़ारों को जैसे देख सकता हो। इनकी मंजर निगारी की वजह से ही इन्हें शायर फितरत भी कहा जाता है, यानी आपका ये जो अंदाज है इसी वजह से आपको शायर फितरत का लक़ब दिया गया। शायर जोश मलिहाबादी इन अशार में लिखते हैं कि हर मंजर हर जगह सुबह के वक्त दिल फरेब नजर आ रही है। दरख्तों की शाखें ऐसे हिल रही हैं जैसे हसीना के बाल इसके कंधे पर लहरा रहे हों। जोश इन मनाजिर के जरिए इंसान की फितरत और इसके के साथ इंसान को जोड़ना चाहते हैं और इन नेमतों के साथ जो कुदरत की हमारे गिर्द बिखरी हुई है, इन नेमतों के साथ इंसान को जोड़ना चाहते हैं और जिंदगी के मानी और सुकून की हकीकी अहमियत से आगाह करते हैं। जब भी हम किसी पुरफिजा मुकाम पर जाएं और ऐसे मनाजिर देखें तो हमें हकीकत में सुकून मिलता है, हमारे दिल में एक सुकून और इत्मीनान का एहसास होता है। जिंदगी की परेशानियों से दूर हम जब फितरत को महसूस करते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, तो आप इन मनाजिर के जरिए इंसान को जिंदगी के सही मानी और सुकून की हकीकी अहमियत से आगाह कर रहे हैं। बकौल इकबाल, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सेमाब, मुर्गान सहर तेरी फिजाओं में है बेताब, ए वादिए लौलाब। वो फैलना खुशबू का, वो कलियों का चटकना,
वो चांदनी मध्यम, वो समंदर का झलकना, वो छाँव में तारों के गुले तर का महकना, वो झूमना सब्जा का, वो खेतों का लहकना, शाखों से मिली जाती हैं शाखें, वो असर है, कहती है नसीम में सहरी ईद सहर है। अब इन अशार में जोश मलिहाबादी क्या मंजर पेश कर रहे हैं, क्या ख्याल पेश कर रहे हैं, हम उसे जानेंगे। शायर फितरत जोश मलिहाबादी सुबह की मंजर निगारी करते हुए लिखते हैं, सुबह होते ही कलियां चटकी और खिल गईं और फिजा में हर तरफ इनकी खुशबू फैल गई। यानी सुबह के वक्त क्या हुआ कि कलियां खिली और उनकी खुशबू हर तरफ फैल गई। अब चांद की रोशनी मध्यम पड़ गई। एक और मंजर वो बयान करते हैं कि सूरज ने जैसे ही तुलू होना शुरू किया तो चांद की जो रोशनी थी वो मध्यम पड़ती गई और समंदर सुबह के उजालों में चमकने लगा। यानी जो वहां पर समंदर था वो इस रोशनी में चमकने लगा। सितारे सुबह के आसार नमूदार होते ही टिमटिमाने लगे। कि जो सितारे थे जो रात के वक्त आसमान पर चमक रहे थे वो सुबह के आसार नमूदार होते ही टिमटिमाने लगे। ये ख्याल हमने पिछले अशार में भी पढ़ा है। और फूलों की खुशबू पूरी फिजा में फैल गई। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो फूलों की खुशबू थी वो तमाम फिजा में फैल गई। वो छाँव में तारों की गुले तर का महकना, कि एक तरफ तो तारे हैं, सुबह का आगाज हो रहा है और वो जो सुबह के आगाज होते ही जो तारे हैं वो टिमटिमाने लगे हैं और उसके अंदर क्या हो रहा है कि फूल जो है खिलना शुरू हो गए हैं और उनकी खुशबू हर तरफ महक गई है। वो छाँव में तारों के गुले तर का महकना, वो झूमना सब्जा का, वो खेतों का लहकना। नर्म हवा के झोंकों से सब्जा ऐसे लहरा रहा है, कैसे लहरा रहा है, वो फूलों की खुशबू पूरी फिजा में फैल गई। नर्म हवा के झोंकों से सब्जा ऐसे लहरा रहा है जैसे उन पर बेखुदी तारी हो गई हो। वो झूम कर लहरा रहे हैं। सुबह का ये असर कि शाखें जोश से झूम रही हैं और टकरा रही हैं आपस में, जैसे एक दूसरे से गले मिल रही हो। कायनात में सुबह के नए दिन की तैयारी हो रही है, कि कायनात में एक नई सुबह का आगाज एक नई तैयारी के साथ जैसे पेश किया जा रहा हो, जैसे ईद हो, खुशी का मौका हो। हमें हर तरफ देखते हुए ऐसा ही महसूस हो रहा है, कहीं कलियां खिल रही हैं तो कहीं सब्जा लहरा रहा है और कहीं जो है शाखें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो ये सब क्या मंजर लग रहा है कि कायनात में जैसे नए दिन की तैयारी हो रही हो, जैसे ईद हो, कोई खुशी का मौका हो, सुबह का आगाज होना जैसे कोई खुशी का मौका हो। जोश ने सुबह के वक्त हर मंजर को दिलफरेब अंदाज में बयान किया है और ये आपका कमाले फन है जो हमें इस नज़्म में देखने को मिलता है, इसीलिए आपको शायर फितरत भी कहा जाता है। अगले अशार हैं, उनकी वो बयां की वो रंगीनी सहरा, वो वादी सर सब्जा हो तैलाब मुसफ़ा, पेशानी गर्दू पे वो हंसता हुआ तारा, वो रास्ते जंगल के वो बहता हुआ दरिया, हर सिमत गुलिस्तान में वो अंबार गुलों के, शबनम से वो धुले हुए रुखसार गुलों के। अब यहाँ पर शायर जोश मलिहाबादी क्या मंजर निगारी कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से और सुबह के मंजर के हवाले से। शायरी अशार में लिखते हैं, जंगल के मनाजिर का बयान कुछ और ही था। वो बहते हुए पानी का किनारा जंगल के हुस्न को मजीद खूबसूरत बना रहा था। यानी इन अशार में हमें पता चल रहा है कि जंगल में एक बहते हुए पानी का किनारा था जो जंगल के हुस्न को मजीद हसीन बना रहा था।
नज़्म मनाज़िर सहर में जोश ने अपने मुनफरिद अंदाज और अल्फाज के चुनाव से इन मनाजिर को जिंदा तस्वीर के तौर पर पेश किया है। यानी हमें यही इस तमाम नज़्म में देखने को मिल रहा है कि जो अल्फाज का चुनाव है और जो मुनफरिद अंदाज है, उससे हर मंजर एक जिंदा तस्वीर के तौर पर हमें नजर आता है। शायर का कहना है कि इन तमाम मनाजिर को देखकर एक सुकून का एहसास होता है। बागों पर नजर डालें तो सुबह के वक्त बागों का हुस्न भी जुदा है। हर सिम बागात और फूलों की भरमार है जो खुशबू से लबरेज है। शबनम के कतरे फूलों पर पड़े हुए हैं जो इनके हुस्न को मजीद निखारते हैं। ये मंजर ताजगी, पाकीज़गी और कुदरत के जादू की अक्कासी करती हैं। ये अशार कुदरत के हसीन मनाजिर और फितरत की दिलकशी की अक्कासी करते हैं। शायर ने बयाबान की ठंडक और सहरा की रंगीनी को बयान किया है। ये दोनों खुसूसियात मुतजाद होने के बावजूद एक ही मंजर का हिस्सा हैं। यानी खुसूसियात मुतजाद हैं लेकिन एक ही मंजर का हिस्सा है, जो कुदरत की हैरत अंगेज तख्लीक को जाहिर करते हैं। फितरत की मद्दाही करते हुए आप लिखते हैं, सहरा भी फितरत के रंगों से महरूम नहीं है। यानी जो सहरा होता है वहां पर फूल और उस तरह से रंगीनियां मौजूद नहीं होती, लेकिन आप क्या लिख रहे हैं कि सहरा भी फितरत की रंगीनियों से महरूम नहीं है। सुबह के वक्त सहरा में भी रंग बिरंग के फूल खिल उठे हैं। शबनम के कतरों से गुलों के रुखसार धुले हुए हैं। मजीद शायर ने सरसब्ज वादी और शफाफ पानी की तस्वीर कशी कुछ इस अंदाज से की है। धूप की चमक में तालाब का शफाफ पानी मोतियों की तरह बिखरता हुआ महसूस होता है और आंखों को इसकी चमक पीड़ा करती है। रात के मंजर के हवाले से आप लिखते हैं, रात के वक्त पर आसमान पर चमकता हुआ तारा कुदरत की रोशनी और खुशी का मजहर है, जो उम्मीद और खूबसूरती का एहसास दिलाने वाला मंजर मालूम हो। रात के मंजर के हवाले से लिखते हैं, रात के वक्त आसमान पर चमकता हुआ तारा कुदरत की रोशनी और खुशी का मजहर है, जो उम्मीद और खूबसूरती का एहसास दिलाने वाला मंजर है। एक और पहलू यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जैसा कि हमने देखा कि जोश मलिहाबादी ने जिक्र किया तालाब का, तो तालाब का मोतियों की तरह चमकना पानी तारों से भरे हुए आसमान जैसा मंजर पेश करता है। यानी दो पहलू हो सकते हैं कि एक ये रात के मंजर के हवाले से हो सकता है कि रात को क्या मंजर था। रात के मंजर के हवाले से आप लिखते हैं कि आसमान पर चमकता हुआ तारा कुदरत की रोशनी और खुशी का मजहर है और उम्मीद और खूबसूरती का एहसास दिलाने वाला मंजर है। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि तालाब का मोतियों की तरह चमकता हुआ पानी भरे आसमान तारों भरे आसमान जैसा मंजर पेश कर रहा है। तो यहाँ पर दो मंजर हो सकते हैं। अगले अशार हैं, वो रूह में अनवारे खुदा सुब वो सादिक, वो हुस्न जिसे देख के हर आंख हो आशिक, वो सादगी इंसान की फितरत के मुताबिक, जरी वो उफक नूर से लबरेज वो मशरिक, वो नगमाए दाऊद परिंदों की सदा में, पैरहन यूसुफ की वो तासीर हवा में। फनी महासिन की बात की जाए तो इन अशार में मुरक्कब इजाफी और तलमीहात का इस्तेमाल हुआ है। नगमाए दाऊद से मुराद जब दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खूबसूरत आवाज में तौरात पढ़ा करते थे। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो माहिरुल कादरी का एक शेर है, रोजे अज़ल भी तेरा, शाम अबद भी तेरा, हर इब्तिदा भी तू है, हर इंतहा भी तू है, वो रूह में अनवार खुदा सुब वो सादिक, के हर मंजर हमें अपने रब की कुदरत की निशानियां दिखाता है। वो हुस्न जिसे देख के
हर आंख हो आशिक, कि ऐसा हुस्न जिसे देखने वाली हर आंख उस हुस्न की, उस मंजर की आशिक हो जाए। और इसको तख्लीक करने वाली अल्लाह ताला की ज़ाते पाक है। और ये तमाम मनाजिर और इनकी खूबसूरती हमें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां दिखाती है। इन अशार में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अब वो किस हवाले से है उस पर हम बात करेंगे कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ा करते थे तो उनकी आवाज इस कदर खूबसूरत थी कि परिंदे उनकी आवाज सुनकर मस्त हो जाते थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास जैसी पाकीज़ा खुशबू जिससे याकूब अलैहिस्सलाम ने यानी उनके वालिद ने उन्हें पहचान लिया था। उनकी याद में रो रो कर उनकी बिनाई चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब उनका लिबास उनके पास आया तो उन्होंने उस खुशबू से उन्हें पहचान लिया था कि ये लिबास उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इन अशार में शायर ने सुबह के मंजर और इंसानी रूह पर जो इसके असरात पड़ते हैं उनका जिक्र किया है कि ये जो सुबह का मंजर है वो इस कदर दिलकश है कि जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज सुनकर परिंदे भी मस्त हों और जैसे हवा में ऐसी खुशबू और पाकीज़गी है जैसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास में मौजूद थी, जिसे महसूस करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया था कि ये लिबास उनके बेटे का है। तो आपका कहना है कि सुबह के वक्त हवा में ऐसी ही खूबसूरती बिखरी हुई होती है। सुबह के मंजर इंसानी रूह पर जो असरार डालते हैं उनका जिक्र करते हुए आप लिखते हैं कि ज़ाहिरी हुस्न तो नजर आ ही रहा है, मनाज़िर फितरत को जब आंख देखती है तो आंख को अच्छा लगता है, ठंडी हवा को जब जिस्म महसूस करता है तो जिस्म को अच्छा लगता है। लेकिन सुबह के ये सारे मंजर और हुस्न इंसान को बातिन पर जो असरअंदाज होते हैं वो बहुत जो है बड़ी बात है और वो बहुत बड़ा मकसद है। और फिर इंसान अपने बातिन यानी अपने अंदर से अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है। बकौल माहिरुल कादरी, रोज़े अज़ल भी तेरा, शाम अबद भी तेरा, हर इब्तिदा भी तू है, हर इंतहा भी तू है। तो जब हम किसी भी खूबसूरत मंजर को देखते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां जिंदगी में बिखरी हुई हैं, तो जब हम उन निशानियों को देखते हैं तो वो हर मंजर हमें अपने रब से मिलाता है। शायर जोश मलिहाबादी भी यहाँ पर इसी के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्हें इन तमाम मनाजिर में जो पाकीज़गी महसूस हुई, जो खूबसूरती महसूस हुई, वो उन्हें उनके रब के करीब ले गई। उन्हें हर मंजर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पर गवाह महसूस हुआ कि जिस पाक रब ने इस खूबसूरत कायनात और मंजर को तख्लीक किया है वो खुद कितना खूबसूरत होगा, क्योंकि सुबह के वक्त जितनी भी रोशनी है आसमान की बजाय जमीन पर उतर आती है। हर तरफ नूर ही नूर फैल जाता है, हर चीज चमक रही होती है। फूल सुबह के वक्त शबनम के कतरों में चमकते हैं, यानी सुबह के वक्त क्या होता है कि फूल शबनम के कतरों में चमकते हैं, जमीन पर रेत के जर्रात धूप की रोशनी में चमकते हैं और बहुत हंसी मंजर पेश कर रहे होते हैं। और फिर हवा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास की सी खुशबू फैली हुई होती है, यानी बेहतरीन खुशबू ने समा महका रखा होता है सुबह के वक्त, जो पाकीज़गी रूह तक में उतर जाती है और इंसान को हर मंजर में रब की कुदरत के जलवे नजर आने लगते हैं। बकौल शायर, मंजर की हद से लेकर पस मंजर तक देख लिया, हर महवर का मरकज तू है, हद नजर तक देख लिया।
اگلے اشعار ہیں، وہ برگے گلے تازہ وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوائے اسنام وہ بت خانہ کی زینت، زاہد کے وہ منظر وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینوں میں صدائیں وہ فغیاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ شاعر جوش ملیح آبادی کی نظم مناظر سحر کا یہ مصرع تازگی اور نرمی کی علامت ہے۔ برگے گل، پھول کا تازہ پتا، اور شبنم کی لطافت قدرت کی نزاکت اور حسن کو ظاہر کرتی ہے، جو دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ یہاں شاعر نے حسن کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے جو خوشی اور مسرت کا سامان ہے، یعنی صبح کے منظر کو دیکھ کر ہماری روح میں بھی ایک سکون اور خوشی اتر آتی ہے، اور جس کو شاید ہم اس طرح سے محسوس نہ کر پا رہے ہوں، کیونکہ ہم نے اس طرح سے قدرت کو شاید بہت کم لوگوں نے صبح کے وقت دیکھا ہوگا، جبکہ شاعر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور پھر جو ان کی کیفیت ان پہ طاری ہو رہی ہے اس تمام کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو منظر ہے اور دوسرا جو اس منظر کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسن اور پاکیزگی کی وجہ سے روح کو مسرت ہو رہی ہے، اس کا مختلف انداز میں بیان ہے۔ تو یہاں پر اسی مسرت کا اور اسی روح پر ہونے والے اثرات کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں شاعر نے حسن کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے جو خوشی اور مسرت کا سامان ہے۔ یہ حقیقت ہی ہے کہ ہر کوئی پہلی پکار پر اپنی اپنی عبادت گاہ کی طرف نکل پڑا، یعنی عیسائی، ہندو یعنی وہ گھنٹی کی آواز سنتے ہی اپنی عبادت گاہوں کی طرف چل پڑے، اور مسلمان اذان کی آواز سنتے ہی مساجد کا رخ کرنے لگے۔ صبح کا تعلق روحانیت اور پاکیزگی سے ہے اور رب کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ خیال، یہ احساس آپ بیدار کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت جو منظر ہوتا ہے اس میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ جیسے ہی پکار آئی، لوگ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق اپنی عبادت گاہوں کی طرف رخ کر لیا انہوں نے، اور آپ کا کہنا ہے کہ صبح کا تعلق روحانیت اور پاکیزگی اور رب کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ بقول شاعر، جس نے پیدا کیا عدم سے وجود، وہ ہے خالق دو سرا میرا۔ آقا کو غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے۔ صبح کا جو منظر ہے اس کا شاعر کا کہنا ہے کہ روحانیت سے بھی اور رب کی یاد سے بھی تعلق ہے۔ تو اسی حوالے کے سے آپ مزید لکھتے ہیں، صبح کا یہ وقت آقا کا یعنی خالق کائنات کا اپنے غلاموں سے یعنی مخلوق خلق سے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے صبح کے وقت میں اتنی پاکیزگی، اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، جو تمام مناظر شاعر نے پیش کیے کہ پھولوں کی مہک فضا میں محسوس کرتے ہو آپ، اور دھوپ کی چمک سے ریت بھی ستاروں کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب صبح کے وقت میں ایک جو ہے کشش ہے اور خوبصورتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کا وقت آقا کا یعنی خالق کائنات کا اپنے غلاموں سے یعنی مخلوق سے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت اپنے اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے، جس کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر ہے، القرآن سورہ بقرہ، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے
लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मादी पहलू से बालातर होकर, और इंसान की रूहानी तस्कीन का जरिया है। असनाम और बुतखाना की जीनत का जिक्र करते हुए शायर मुख्तलिफ मज़ाहिब का हवाला पेश कर रहे हैं। नाकूस, घंटी यानी असाई इबादत गाह का इस्तारा भी हो सकती है, और हिंदू की इबादत गाह का भी जिक्र हो सकती है। इससे निकलने वाली सदाएं खुदा की याद को उजागर करती हैं। अजान की आवाज को खुदा की हम्दो सना में डूबा हुआ शायर ने बयान किया। ये मिसरा मुसलमानों की इबादत और पाकीज़गी और रूहानी गहराई की अक्कासी करता है। शायर का कहना है कि सुबह के इस मंजर को देखकर या सुबह के आगाज से तमाम मज़ाहिब और इसके मानने वाले खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सुबह के वक्त फूलों की ताजगी और शबनम के कतरे अपनी वो मजीद खूबसूरत लगने लगते हैं और वो फूलों के हुस्न को बढ़ा देते हैं। सुबह की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इंसान चाहे किसी मजहब से भी ताल्लुक रखे। यहाँ पर बुनियादी तौर पर क्या हवाला है कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखे, सुबह के वक्त जैसे ही उसे पुकारा जाता है वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा होता है, और सुबह का ताल्लुक रूहानियत और रब की याद से जुड़ा हुआ है। और सुबह के वक्त में बहुत खूबसूरती भी होती है और पाकीज़गी भी होती है। शायद इसकी वजह भी ये है कि वो वक्त खालिक का अपनी मखलूक से मिलने का वक्त होता है। बंदों हिंदू जो बुतों की पूजा करते हैं वो भी अपनी इबादत गाहों की तरफ बढ़ जाते हैं, और मुसलमान जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं वो भी सुबह के आगाज से जैसे ही अजान की आवाज सुनते हैं तो अपनी मसाजिद की तरफ चल पड़ते हैं। वो सुबह के आगाज के हवाले से लिख रहे हैं बकौल शायर, मंजर की हद से लेकर पस मंजर तक देख लिया, हर महवर का मरकज तू है, हद नजर तक देख लिया। यानी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां तमाम कायनात में बिखरी हुई हैं। शायर मजीद सुबह के वक्त इबादत के असर को बयान करते हुए लिखते हैं, सुबह के वक्त दिल सजदा शुक्र अदा करता है और फिर इंसान की जिंदगी के गम खत्म हो जाते हैं। आलाम यानी गम, दुख, क्योंकि वो अपने रब के सामने पेश कर दिए गए। यानी अल्लाह ताला की रहमतें सुबह उठने वालों और जिक्र करने वालों पर बरसती हैं, और फिर तमाम दिन अल्लाह ताला की नेमतों का नज़ूल इन लोगों पर होता है। अल कुरान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी हमारे अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यानी हमारे जितने भी गम, जितने भी दुख, कितने ही बड़े क्यों ना हो, जब हम उसे अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देते हैं तो उनका हल निकल आता है। इसलिए सुबह की इबादत बहुत जरूरी है, और इससे पूरा दिन इंसान पर नेमतों का नज़ूल होता है। इसलिए सुबह का वक्त और इस वक्त अल्लाह के करीब होना बहुत अहमियत रखता है। सुबह के वक्त सजदों में जो लज्जत और सुकून है, शायर का कहना है कि सुबह के वक्त सजदों में जो लज्जत और सुकून है, अपने गुनाहों की जो तौबा का मजा है, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। इसलिए शायर का कहना है कि उस वक्त की कदर करो और अपने आराम जात के सुकून को छोड़कर दिल के सुकून की तरफ बढ़ो। सुबह का ये वक्त मखलूक को खालिक के करीब करता है। इस वक्त की कदर करो, ये रूहानियत और पाकीज़गी के लम्हे हैं। गुनाहों से तौबा की कबूलियत का वक्त है। अपने दुखों को रब की बारगाह में रख देने का वक्त है, जहां पर दर्द को सुकून मिलता है। रब की कुदरत तमाम कायनात को घेरे हुए है। ये तमाम ख्यालात शायर जोश मलिहाबादी ने अपनी नशार में पेश किए। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये नज्म रूह की पाकीज़गी, मनाजिर की खूबसूरती के हवाले से और रूह की पाकीज़गी के हवाले से, और किस तरह से ये सुबह का मंजर सुबह का वक्त अहम है और किस तरह से हमें हमारे रब के करीब करता है, उस गिर्द घूमती है।
ان تمام حوالوں کے گرد گھومتی ہے اور یہ تمام پہلو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔